I think the break will help DC the most. इनको कप्तानी छोड़ी है, इनको बोला गया कि आप जाके ना एक्सप्रेस करो अपने आप को, इतना तजुर्बा है कि आप शॉट लगाओ। T20 में ये नहीं सोचना भाई, T20 में आपको शॉट लगाना है, छक्के लगाने हैं, अपने गेंदबाज को पिक करो, बड़े ओवर कमाओ। So he was one of the reasons why RCB has been consistent. Whenever he wasn't available in the 4-5 seasons, their bowling has looked totally different. रोहित शर्मा का फॉर्म देखा, हार्दिक पांड्या अच्छी कप्तानी करते दिखे, बुमराह जब से आए हैं मुंबई जीतना स्टार्ट कर दी है इस आईपीएल। शुरू में खेले नहीं, 5 में 4 हार गए, जब वापसी करी बुमराह ने तो मुंबई जीती। मुझे नहीं लगता है इस टीम को टॉप 2 में फिनिश करने का बहुत ही अच्छा चांस है। यदि टॉप 2 में फिनिश नहीं भी कर पाते तो ये तो मुझे लगता है कि टॉप 4 में तो ज़रूर आएगी। Who do you think the break will help more, if at all, and who do you think it'll disrupt a little bit? I think the break will help DC the most, because DC, on the back of what was happening on that particular day, I mean, they were clearly on the back foot, and they would certainly have some time to rethink actually, because the season had really started so well, and then it seemed that they couldn't win on a consistent basis. So this break would certainly ease that little bit of a pressure that the players would have felt. They would come back, recharge, and except for Mitchell Stark, I don't really think that they're going to be anxious about any players who may just not be available for the remaining matches. जब ये शुरू में आए थे तो ये एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले हैं, जहाँ पे बेंगलोर की पारी आई, जहाँ चेन्नई के वहाँ स्कोर किया, वहाँ बाउंड्री मार रहे थे। इनकी जो मंशा थी कि मुझे अटैकिंग खेलना है, शॉट लगाना है, ये कदमों का इस्तेमाल केएल राहुल बहुत कम करते थे, पर वहाँ पे करके दिखाया, स्वीप करके शॉट लगाया। पर जब दिल्ली पहुंचे थोड़ा धीमा पिच था, वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फिर 15 बॉल 15 रन, 20 बॉल 20 रन। अरे इनको कप्तानी छोड़ी है, इनको बोला गया कि आप जाके ना एक्सप्रेस करो अपने आप को, इतना तजुर्बा है कि आप शॉट लगाओ। वो हम चाहते हैं आने वाले मैचेस में दिखें केएल राहुल, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो अपने शेल में चले गए, जहाँ पे स्ट्राइक रेट की बात होती है कि भाई अरे नो विकेट बचा के रखो, मुझे आउट नहीं होना, मैं आउट होगा तो टीम हार जाएगी। T20 में ये नहीं सोचना भाई, T20 में आपको शॉट लगाना है, छक्के लगाने हैं, अपने गेंदबाज को पिक करो, बड़े ओवर कमाओ, ये करना पड़ेगा केएल राहुल को। मुझे लगा पिछले कुछ पारियों में थोड़ा सा सहम से गए हैं कि धीमी, स्पेशली दिल्ली में बहुत धीमा खेले। तो मेरा मानना है अब जो ये ब्रेक के बाद आएंगे तो मंशा जहन क्लियर करके आए कि भाई मैं जाऊंगा, मेरा काम तेज खेलना, अटैक करना, बाउंड्री मारनी है। Yeah, he's a vital cog in their bowling department, because he's the one who gives them teeth. It's not necessarily only with the new ball, but he's bowled across phases, and if you look at the bounce that he gets and the kind of consistency that he has on hitting that particular length, he can get steep bounce, that tennis ball bounce that we often saw at Chinnaswamy. So he was one of the reasons why RCB has been consistent. Whenever he wasn't available in the 4-5 seasons, their bowling has looked totally different. So whether Ngidi stays back, I'm not so sure, because Ngidi could be that like-for-like replacement, because that's how they played in a particular match where Hazelwood rested as well. He picked up 3 wickets, was very good as well. But whether he's part of that Test Championship final, and you also have to see that from South African point of view, this is the first time that they've reached the World Test Championship final. So Australia, they would certainly, in fact, they make their players available for those vital games, those W Test Championship finals or World Cups. That's how they think. So that could be a real issue. Batting would be sorted. I think there are enough resources in the batting department, but bowling could clearly be an issue. अब इस रीस्टार्ट के बाद जब वो वापस आएंगे तो संदर्भ थोड़ा बदल जाएगा, एक संदर्भ ऐड हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, क्या वो इमोशंस होंगे, क्या वो भूख थोड़ी ज़्यादा होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 18 साल के इंतजार को ख़त्म करने की? आपसे बेहतर नहीं बता सकता ये कुछ। देखिए, ये जो फैसला उन्होंने लिया है तो उन्होंने काफ़ी सोच समझ के लिया होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे और बिल्कुल ये फैसला ले लिया, क्योंकि मतलब जीवन में आपको एक ही अवसर मिलता है और वो फैसला उन्होंने लिया है तो काफ़ी सोच समझ के लिया है, क्योंकि अब वो ज़रूर चाहेंगे कि अपनी सारी जो एनर्जीज़ है वो 50 ओवर क्रिकेट और IPL क्रिकेट के लिए दे। तो उस तरह से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो RCB के लिए ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर वो फ्रेश रहेंगे और उनको अब इसके बाद जाके सोचना भी नहीं है कि चलो इसके बाद जाके टेस्ट की तैयारी करनी है, अलग तरीके से खेलना है। T20 का प्रिपरेशन अलग होता है, टेस्ट का प्रिपरेशन अलग होता है। तो
तो एक तरह से वो आई थिंक लोड निकल जाएगा उनके कंधों के ऊपर से और वो विस्फोटक अंदाज में देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा का फॉर्म देखा, हार्दिक पांड्या अच्छी कप्तानी करते दिखे, बुमराह जब से आए हैं मुंबई जीतना स्टार्ट कर दी है इस आईपीएल। शुरू में खेले नहीं, 5 में 4 हार गए, जब वापसी करी बुमराह ने तो मुंबई जीती। और जो मैच हारी भी है गुजरात के खिलाफ, वहाँ बारिश आई, खेल रुका रहा, डीएलएस में मुंबई के बार आगे भी थी, फिर खेल स्टार्ट हुआ और लास्ट बॉल तक मैच गया। लास्ट बॉल पे अगर हार्दिक पांड्या स्टंप पे थ्रो मारते तो वो सुपर ओवर में मैच जाता। तो हारी भी तो मुंबई लड़ाई करके हारी, ऐसा मेरा मानना। और बहुत तगड़ा फॉर्म चल रहा है, जहां गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट है, सैटनर है, वहां पे बुमराह की वापसी हो गई है। बल्लेबाजी में रिगल्टन अच्छे फॉर्म में चले, सूर्यकुमार यादव का अच्छा फॉर्म है, तो ओवरऑल अच्छी बैलेंस टीम है। बचे हुए मुकाबले जयपुर में खेलेंगे, जयपुर की परिस्थितियां कितना सूट करेंगी उस टीम को आपके नजरिए से? देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि भारतीय बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर रही है। वहाँ पर प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, शशांक, श्रेयस खुद और नेहल वाड्रा है वहाँ पे। तो ओवरऑल ओवरसीज़ खिलाड़ी और ख़ासकर बल्लेबाजी इनके लिए ज़्यादा मायने रखी नहीं, क्योंकि जॉश इंग्लिश खेले, मैक्सवेल खेले या फिर वहाँ पर स्टॉइनिस भी खेले, तो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जयपुर जा रहे हैं। जयपुर में चहल ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ पर वो ज़रूर गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। कि ये जो पिच है वहाँ पर इतना बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अक्सर हम देखते नहीं है। 180-190 का अक्सर मैच होता है, तो वो एडजस्टमेंट और वो शायद थोड़ा सा स्विच करने की ज़रूरत, मगर उसके अलावा मुझे नहीं लगता है इस टीम को टॉप 2 में फिनिश करने का बहुत ही अच्छा चांस है। यदि टॉप 2 में फिनिश नहीं भी कर पाते तो ये तो मुझे लगता है कि टॉप 4 में तो ज़रूर आएगी।